All right, let's start officially. I am Rubina Shujil, Deputy Manager, Alumni Relations, and this training session is organized by Office of Alumni Relations. Our trainer is Mr. Imran Munir. He's an experienced professional and trainer with over 17 years experience in global procurement and supply chain of the beverage and textile industry. Currently, he is serving in Pepsi Cola as a procurement manager. So over to you, Imran sir. Hope everyone can see my screen. Yes, sir. Okay. So, Rubina, can we start or we have to wait for someone? Well, yes, you can start. Okay, thank you. So thank you everyone for joining this session. First of all, I would like to thank Ms. Rubina and Sajid Mirza, who has given me that opportunity to share my experience in terms of career with you guys like this. So basically, let's talk about career. It's a general general phenomena, general concept that career is like a job. We have to do, we have to complete our studies and have to perform a job and earn money and something. It's a generic formula, right? And we have no plans. We have not figured out in a serious note what is actually a career, right? So I will be telling you just here about how you should plan your career. You should how you can create your career strategy, something. But मैं एक चीज I will clear that कि I will not be telling you कि interview skills क्या होंगी, what would be the CV methodology, how you can write the CV, because these are the generic terms. But when you know your plan, your strategy, your career map, your framework, so ultimately you can answer these things easily. Actually, we are not focusing on the things in a longer run, but in the short term. So we will be discussing the same things in today's it's workshop like this, right? So this is my brief introduction. Basically, I have a 20 years experience in serve industry in multinationals and textile, carpet and reg, freight forwarding, banking industry. So that's, and the major is basically belongs to global procurement and supply chain area, which is it's a part of my career. But on other side, I am running two platform, name it Tap Skills and Infinity Dots. Infinity Dots is actually a business consultancy firm where I'm providing a services in terms of consultancy, and Pep Skills is actually a capability training and development forum. So giving you the brief introduction is not the purpose what I have done and why I have done that, but actually if you are reading that slide, you can see the vision and the learning philosophy just on the left on top side. Basically, मैंने ये slide को इसलिए ready किया कि just to start our content कि why we are doing a career planning. जो vision आपको नजर आ रहा है, to be an expert in my field, care about the industry success and help to live those in vision and business around me, provide real value to my community and perform with purpose. This vision, honestly, I have an experience of 20 years, or ye vision, ye philosophy I have created just 2 years back. It's surprising because if I am saying that, it means I have wasted my 18 years just to find out my vision and learning philosophy, right? Actually, इस 18 years में experience तो बहुत कुछ किया, but बहुत सारी चीजें ऐसी मिस की जिसकी वजह से शायद वो 18 years जो मुझे 18 years के बाद एक विजन और फिलॉसफी क्रिएट करने में
एक struggle करनी पड़ी, वो शायद if I will attach with the mentor, I will connect with the people and I have a right direction, तो शायद ये चीज मैं boost up कर सकता था. I'm just giving my example actually. That would be a true beans के what I have done. So after 18 years, when I found myself as a vision and in learning philosophy as a mission, so I've spent a time of 2 years, like 10 years. कि मैंने 2 साल में 10 साल का काम किया, ठीक है. I have created my brand. I have initiated my 2 platforms. I am connected as a freelance consultant. I am doing business coaching, mentoring, counseling, student counseling, so different चीजें. So आज मैं आपको इन्हीं मतलब during that 45 minutes workshop, I will be telling कि आप लोग अभी बहुत beginning level पर हो, ठीक है. मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे होंगे जॉब, कुछ अभी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे, बट एनी हाउ दे आर एट दिस स्टार्ट स्टेज, एट द फर्स्ट स्टेप. सो आज बैठ के अगर आप अपना डीप टाइप करना शुरू करोगे तो यू शुड क्रिएट योर स्ट्रेटजी कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने किस तरफ जाना है, आपको करना क्या है लाइफ में. So that means you actually, define your path, and actually it's name it a career ladder या career plan in my definition, right? So आगे चलते हैं. What is career? Just एक छोटा सा request, like if you can, put in chat box कि how you define your career in just one word. Just give you maybe a 1 minute something. कि what do you think in your mind, what is the definition of career in one word? Okay, spending whole life in a single profession, set goals and set target, achieving goals. What I am concluding from your words, that career is like a job. The first purpose is to earn, or whatever you have invest in terms of in your education, in your certification, whatever you have done that. So usme you should be, your first focus would be to earn or find a job is a hard phase which is very prominent in the start of the career. So actually unfortunately, we know that career is the same definition. I have just put up some definition. It's reflect that okay, it's a responsibility. It's a rules where you will be following the rules and performing any task, any service, and against that services you will be getting monetary benefit, something like this, right? But what I have learned, the career from last 18 years, what is career? When I have started career, तो मेरा भी यही focus point था कि I have to earn, ठीक है? I have to fill my pocket. But actually, in my definition, career is a career which carry your something knowledge, experience, failure, skills, financial success. अब gradually मैं इसको कैरियर को इस कैरियर बकेट में इन चीजों को क्यों कैप्चर कर रहा हूँ, बिकॉज कैरियर की जो मैंने यहाँ पे 2-3 मिथ्स बताई हैं कैरियर की, जो हमारे माइंड में प्रोग्राम हुई हुई है, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली वी आर मोर और लेस फॉलोअर्स, वी आर नॉट क्रिएटर्स. जेनेरिकली अगर मैं बात करूँ, few ones are create a unique paths, but normally people are following by motivating each other, or maybe followed by instruction something, but they have no motive something. So इसी तरह कैरियर की मिथ्स में कुछ सेल्फ एटीट्यूड कंसर्न्स है, जिस वजह से हम कैरियर में अपनी जॉब्स में अपनी जो अपना हमारा जो जॉब पाथ है, अर्निंग पाथ है, उसके अंदर हम उसमें फेल हो रहे होते, ठीक है. But why I'm saying career is a career which carry your success, failure, skills, because आप start लेते हो career तो you have sufficient knowledge of all buckets which you can polish and explore by getting an experience, ठीक है. और उसमें जब आप skills का
फ्लेवर ऐड करते हो थ्रू फेलियर्स, बिकॉज एवरी फेलियर गिव यू सम स्किल्स, some knowledge, some key points, some tips. So these are all correlated और उसमें financial भी आ जाते हैं और success is the end जहाँ पे आपका success हो रहा हो, ठीक है. So career को जब हम लोग इस product picture से देखते हैं कि career is not like this कि हमने एक job करनी है. मैं इसको यूं से examples लेता हूँ. I'm trying to cover up के better understand कर सकूँ because on offline जो है ना काफी अच्छा interaction होता है. But right now मुझे सिर्फ बोलना है, but so I hope कि you should be understanding, otherwise in question answer we can cover up that. So आप एक स्टूडेंट जो है वो अपना डिग्री कंप्लीट करता है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद let's suppose he has done MBA finance and now he is trying to getting a job in finance or accounts. His mind is totally blocked in a block of finance and accounts. He never ever thought about marketing, about supply chain, about planning, about logistics, about R&D, about sales, but it's focused because उसने जो पढ़ा है उसके अंदर उसका एक माइंडसेट फिक्स हो गया कि यार मैंने फाइनेंस या अकाउंट्स को ही फॉलो करना है, ठीक है. सो यहाँ से आपका एक्चुअली जो है ना फॉल स्टार्ट हो जाता है. यू डोंट नो कि आपके अपने अंदर ट्रेट्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है. You don't know कि what you have the ability या strengths या skills जो कि आपको एक्सप्लोर कर सकती है, ठीक है. अब उन चीजों का ना पता होना आपको मिस डायरेक्ट करता है और मिस डायरेक्शन में आप शायद मल्टी इयर्स अपने जाया भी कर लेते हैं. सीख जरूर रहे होते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं है कि जितना टाइम स्पेंड करते हैं अगर आप प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करेंगे तो आप डेफिनेटली सीख रहे होंगे. कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी. बट अगर वो लर्निंग राइट टाइम पे राइट जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, वो आपके किसी काम नहीं आ सकती, तो दैट मीन्स यूजलेस है. सो इसलिए कैरियर को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करना है. और एक मिथ, अब मिथ नंबर 1 है कि हम लोग कैरियर को नॉर्मली ना तो एज ए एंटरप्रेन्योर लेते हैं, ना एज एन एक्सपर्ट लेते हैं, ना एज ए बिजनेसमैन लेते हैं, ना एज ए कंसल्टेंट. हमारा सिर्फ बिग नो होता है, इट्स जॉब ओनली. हमने सिर्फ जॉब करनी है. एक्चुअली वी आर बाइंडिंग आवरसेल्फ कि ये काम मैं इतना करूंगा 9 to 5 और उसके अगेंस्ट मैं पे करूंगा. वी आर नॉट गोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है. एज ए जेनेरिक में बात कर रहा हूँ, ठीक है. फ्यू वंस आर डूइंग दैट, बट जेनेरिकली अगर हम बात करें तो हम इस माइंड फ्रेम में होते हैं कि हमने सिर्फ जॉब करनी है, जॉब के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उतना ही हमें अर्निंग मिल रही है और दैट्स क्लोज. बहुत जगहों पे आपने शायद कुछ वीडियोस देखी होंगी, स्टेटमेंट सुनी होंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, हैव अ डिफरेंट पे स्केल, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं होता कि सब एक ही जैसी स्केल पेस ले रहे होंगे. व्हाई? बिकॉज कुछ ना कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ स्किल सेट दे हैव इन अ डिफरेंट फॉर्म. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग different monetary benefit in on the same platform. So that is actually your mind, और उस माइंड के पीछे your strategy, और वो स्ट्रेटेजी क्या है, योर कैरियर मैपिंग, जिसको हम लेटर ऑन जाके बात करते हैं. अच्छा, अब कैरियर के अंदर हमने सिर्फ जॉब फोकस किया, एक तो ये मिथ है. दूसरी मिथ क्या होती है कि हमारी कैरियर मिथ में वन परफेक्ट जॉब, मेजर मेक्स यूनिक, ग्रेड्स आर डेस्टिनी, चोजन पेक्स फॉलोअर्स. वन परफेक्ट जॉब का क्या मतलब है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी फाइनेंस पर्सन से कि ओके यार मैं सिर्फ फाइनेंस पे काम करूंगा, मैंने और कहीं नहीं काम करना बिकॉज मैंने मेजर इसी में किया हुआ है. और दूसरा उसका माइंडसेट ये होता है कि अच्छा मैंने मेजर फाइनेंस में कर लिया है, या मैं कहता हूँ मेजर मार्केटिंग में कर लिया, तो मैं मार्केटिंग में काम कर सकता हूँ, मैं सेल्स में नहीं जा सकता, मुझसे सप्लाई चेन में काम नहीं होगा. ये एक मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ. और तीसरी चीज हमारे फोकस होती है स्टूडेंट्स की कि ग्रेड्स आर डेस्टिनी, ठीक है. ग्रेड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे तो मैं इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैं अपना प्रोमिनेंट भी हो सकता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है. बट डायनेमिक्स हैज बीन चेंज्ड, राइट. पहले बहुत सारी चीजें इस पे जरूर फॉल करती थी कि समवन इज एप्रिशिएटिंग कि यार इसने पढ़ा है और अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, ये लाइक होगा, ही विल डू. बट आज जो पैरामीटर है उसके अंदर हम इस चीज को फोकस नहीं करते कि व्हाट हैव यू डन. मतलब आप इसको मैं यूं कहता हूँ कि क्लाउड का जमाना है ना,
everything is available on cloud, hard disk. You don't need to memorize that. ठीक है, अब ग्रेड्स आपके क्या हैं क्या नहीं है, ये चीज नहीं है कि ग्रेड्स अच्छे होना बुरी चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है कि आपने कितना इंटरेस्टेडली काम किया, वो एक डिफरेंट, मैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा भी स्पेसिफिक भी रखना है. सो आपके ग्रेड्स जैसे मर्जी हैं, हाउ यू कैन परफॉर्म and how you can apply your knowledge into right category, that is actually a need of our students towards our industry. ठीक है, हम इंडस्ट्री में बैठे हुए, आप अगर आप एक जगह इंटरव्यू देने गए हुए, and if I will ask a question from you, कि why have you done MBA in marketing, you literally still confused. मैं यही सेशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दे रहा था, एंड उनसे मैंने ये क्वेश्चन जब किया, वहाँ पे मिक्स ग्रेजुएट्स बीबीए स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सो दे वर थिंकिंग, दे स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई वी आर डूइंग दैट. ठीक है, पीसी का आंसर ये था कि यार हम इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है बीबीए कर लेंगे तो बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, जॉब मिल जाएगी. ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरा पैशन है क्योंकि मार्केटिंग में मेरा शौक है. अब वो शौक क्या है, उसकी डेप्थ नहीं है, बस एक ओवरऑल पिक्चर है उसके जहन में, इंस्पायर्ड है. मैं एक मेरे मतलब मेरे रिलेटिव्स में एक बंदा है, वो लीगल मैनेजर है और अच्छा अर्न कर रहा है, तो आई वाज इंस्पायर्ड कि यार मैं लीगल ही करूंगा, मैं लीगल स्टडीज करूंगा और मैं लीगल मैनेजर बनूंगा. सो आई एम इंस्पायर्ड, बट मैंने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. सो आई एम जस्ट, वो जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना फॉलोअर्स की, उस तरह से फॉलोअर्स हो गए. तो हमारा जो स्टांस है ना कैरियर के अंदर और कैरियर की इस मेथ के अंदर, हम बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ठीक है, चूज एंड पिक बहुत करते हैं. ठीक है, हम लोग जैसे कभी आपने देखा होगा, एक टाइम था कि एसीसीए का जमाना था, एवरीवन इज डूइंग एसीसीए. फिर एक दफा एमबीए का टाइम आया तो एवरीवन इज डूइंग एमबीए, बट nobody knows कि why they are doing, why they are going on that path, why they are doing this activity. बहुत कम लोग हैं जिनसे ये आंसर मिलता है. दे हैव, और वो क्यों आंसर मिलता है कि उनके पास पूरा एक प्लान होता है. आप एक बिजनेस करने जाते हो, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हो, तो आप उसकी प्रॉपर R&D करते हो, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करते हो, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाते हो, एंड फिर उसको डिप्लॉय करते हो या उसको मार्केट में प्रेजेंट करते हो, और फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी मेच्योरिटी, उस पर वर्कआउट करते हो. अगर आप कुछ नहीं कर रहे होगे तो आप ब्लैंकली नहीं चल सकते हो, बट हम कैरियर में शायद ब्लैंक होते हैं. अच्छा, अब ये कैरियर मेथ है. मैं इस कैरियर मेथ को लेटेस्ट मॉड में क्या कहता हूँ कि हमारी ये तो अभी करंट जो है ना माइंडसेट है, बट ये ओल्ड थॉट हो चुकी है. न्यू थॉट क्या है? एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, मल्टी डायरेक्शंस, क्रिएट कॉम्बिनेशंस, डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ, राइट, एंड invest in yourself, explore the opportunities. This is the question कि explore opportunity क्या करनी है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोट की थी फाइनेंस पर्सन. अब वो फाइनेंस पर्सन, फाइनेंस में भी ऑडिट है, प्लानिंग है, कंट्रोल्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, और सिंपली बुक कीपिंग जिसको अकाउंटेंसी कहते हैं, अकाउंटेंसी भी है. ठीक है, ठीक है, और इसमें एक मेजर इवॉल्विंग अप्रोच है, दैट इज सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. अब ये 6 पिलर्स इटसेल्फ मौजूद हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. ठीक है, बट कैन वी फिगर आउट दैट कि हम इसमें कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऑडिट में मैं क्यों जा सकता हूँ? बिकॉज मेरी थिंकिंग और जो मतलब क्रॉस चेक, उसको एवेल्युएट करना, एनालिसिस करना, वो बहुत अच्छा है. So maybe audit, maybe planning is the right note. Control point of view से मैं processes बहुत अच्छे बना सकता हूँ. But when I will do the right, explore the opportunity, कि जब मैं खुद को जानता हूँ, ठीक है, तो explore कर सकूंगा अपनी उन opportunities को कि कहाँ कहाँ किन किन opportunities में मैं fit हो सकता हूँ. Analytical skills मेरी अगर अच्छी हैं तो मैं supply chain में भी अच्छा जा सकता हूँ, finance में भी अच्छा, marketing, sales can be, right? एक तो ये चीज होगी, और उसके साथ एक मैं मल्टी एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी के साथ क्रिएट कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करूंगा. कि आजकल ना एक कॉम्बो बना हुआ है. कॉम्बो इज लाइक दैट कि
एक कॉम्बो आपको एजुकेशन में नजर आएगा, एक समवन इज इंजीनियर बट स्टार्ट हैज डन एमबीए, तो उस दोनों को एक कॉम्बिनेशन बना लिया उसने कि ही इज बेटर इन इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन प्लस मैनेजमेंट स्किल्स बिकॉज हैव डन एमबीए, सो दैट इज द वन कॉम्बो। उसके बाद कैरियर के अंदर यानी जॉब के अंदर, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कॉम्बो क्या चीज होती है कि आई एम नॉट स्टिक टू कि मैंने स्टार्ट किया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और फिनिश किया मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, आई एम नॉट सक्सेसफुल, बट इफ आई एम डूइंग मार्केटिंग, फिर मैं चला गया सेल्स, फिर मैं आ गया सप्लाई चेन, now I'm taking a flavor of every department with the different buckets and different cross functional experiences, yeah, long term, job through job experiences, but I am creating a combinations of my knowledge and the whole business picture, a whole business picture towards lead me a GM position, director position, because once the person is on a directing position जहाँ पे वो lead कर रहा है, so he or she should know कि बॉटम लाइन पे काम किस तरह से हो रहा है, एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। तो ये क्रिएट कॉम्बिनेशन और इसी तरह से मल्टी डायरेक्शंस कि आपने सप्लाई चेन में काम किया, आपने अपना लॉजिस्टिक्स में काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, अब आपकी एक सप्लाई चेन की बकेट पूरी होगी, या आपने फाइनेंस में काम करना है तो ऑडिट में किया, कंट्रोल में किया, अकाउंट्स में किया, उसके बाद आप एज ए CFO टारगेट कर रहे हो। सो इट्स अ फ्रेमवर्क, मींस कि आप किस तरह से पिलर्स को बिल्डअप करते हुए यू शुड बी गोइंग अपवर्ड साइड, ठीक है। अच्छा, दो आखिरी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे स्टूडेंट्स में लैक करती है, डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये है कि वी आर नॉट सीरियसली शोइंग आवरसेल्फ। आप देखते होगे हम इस तरह से बात करते हैं कि क्लास के अंदर हम लोग अगर देखें, हेलो, हम लोग अगर क्लास के अंदर देखें तो एक ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ मिड में आते हैं, कुछ बिल्कुल बैकवर्ड पे होते हैं, ठीक है। पढ़ने में जैसे मर्जी हो, वो जो प्रोमिनेंट होते हैं बाज का इतने अच्छे ग्रेड लेने वाले नहीं होते, बट प्रोमिनेंसी की वजह से वो बहुत आगे जा रहे होते हैं। they are building unconsciously, unintentionally, they are building some skill set level at that stage. So demonstrate yourself is a key approach जो कि आप at student level अपना establish करो, और ऑफिसेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके जहाँ पे आपको आपने कोई काम करना है, वो काम तो आपने कर लेना है, आप कोई 15 दिन में 10 दिन में काम सीख के रेप्लिकेट भी कर लोगे, बट उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको प्रोमिनेंट कैसे करोगे, दैट्स एक्चुअली अ टेक्निक दैट नीड टू बी लर्न। और आप अपना यूनिवर्सिटी लेवल से ये स्टार्ट कर रहे होते हो, आप प्रेजेंटेशंस देते हो, आप केस स्टडीज पढ़ते हो, केस स्टडीज के अंदर कितना आप उसको डीप डाइव करते हो, उसकी बेस के ऊपर जितना आप नॉलेज लेते हो उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते हो। कॉन्फिडेंट जब हो गए तो आप अपने आप को डिस्प्ले बहुत अच्छा कर सकोगे, ठीक है। सो लिंक कर रही हैं चीजें उस तरीके से। मैं यहाँ पे यूं एग्जांपल लेता हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग MBA, ऑनेस्टली जो हमारे टीचर है उन्होंने हमें केस स्टडी दी, और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। केस स्टडी का पर्पस ये था कि आप केस स्टडी पढ़ें, इसके की पॉइंट्स देखें और प्रेजेंट करें हमें आके। अब मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने आज 2-3 साल पहले जब रियलाइज किया तो मैं खुद हंस रहा था कि यार व्हाई आई वाज वेस्टिंग दैट टाइम। मैं तो ये स्किल वहीं पे डेवलप कर सकता था जो ओवर द पीरियड मैंने 5-6 साल में की, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफिस बाय डूइंग मेनी मिस्टेक्स समथिंग। वो क्या था कि उस केस स्टडी को हमने 5, उसके कोई 10 पेजेस थे, हमने उन 5 मेंबर्स में 2-2 पेजेस डिवाइड कर लिए। भाई तुम 2 पढ़ लो और एक दूसरे को शेयर कर लो, और एक जस्ट बुलेट पॉइंट्स में एक ग्राफ सेट किया, स्लाइड्स बनाई और जाके प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंटेशन में हम में से जो 2 बंदे अच्छे थे हमने उनको आगे प्रोमिनेंट कर दिया, जिसको क्वेश्चन आंसर देने आते थे जैसे भी वो रेप्लिकेट करके दे सकता था उसको भी प्रेजेंट कर दिया, यानी हमने अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर कर ली। बट
आज जब मैं बैठ के उस चीज को फोकस कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि यार उस केस स्टडी को जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो थी रिटेल सप्लाई चेन के ऊपर। अब वो रिटेल सप्लाई चेन, उसको मैंने जब बेंचमार्क करने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज को रिटेल सप्लाई चेन पढ़ी, तीसरी से मतलब तीसरी जगह पे मैंने उसके प्रॉज एंड कॉन्स कैप्चर किए, फिर उनको कंबाइन किया, तो यू कांट बिलीव कि उसमें मेरा नॉलेज कहाँ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं एक पिक्चर क्रिएट करूंगा, स्टोरी लाइन क्रिएट करूंगा और प्रेजेंट करूंगा, डेमोन्स्ट्रेट माई सेल्फ, तो जो भी सामने मुझे देख रहा है और मेरी अप्रोच को देख रहा है या मुझसे क्वेश्चन करता है और मैं उसको आंसर देता हूँ विद मल्टी डायरेक्शंस, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो, या व्हाट वुड बी योर थॉट कि उसके सामने मेरा परसेप्शन क्या होगा? वो परसेप्शन ऐसा होगा जो लेटर ऑन एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो वो लेटर ऑन मुझे खुद ही अट्रैक्ट करेगा कि इमरान, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई हैव इन माय कंपनी, प्लीज कम। बिकॉज उसने मुझे उस अप्रोच में देख लिया है कि हाउ आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ। अब अनफॉर्चुनेटली एज ए स्टूडेंट लेवल हम वो ड्राइव बड़ी फन में करते हैं, ठीक है, बट दिस वाज हैपेंड एंड दिस इज हैपनिंग, ठीक है। सो कहने का मकसद ये नहीं है फन भी करें बात, इंजॉय भी करें, बट बताने का मकसद ये है कि ओवर लास्ट 18 years आई जस्ट डिग डाउन माई थिंग्स लाइक दिस। मैंने क्या किया और कैसे करना चाहिए था। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट दैट अप्रोच विल प्रेजेंट टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आज करियर स्टार्ट करने लगे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्लगिंग माई ओन एग्जाम्पल्स। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब ये है कि मुझे टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स बिल्डअप करनी है, मुझे टाइम टू टाइम अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करना है, ठीक है। अब ये स्किल्स कैपेबिलिटीज इट्स नॉट रिलेट टू जस्ट लाइक मैं एक्सेल सीख लूंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट सीख लूंगा, और या मैं कोचिंग मैनेजर का प्रोग्राम कर लूंगा, या मैं स्पीड फॉर द ट्रस्ट का एक कोर्स कर लूंगा। दिस इज हैपनिंग, वो आपको स्किल्स भी चाहिए। आप ग्रेजुअली अपने आप को अवेल्युएट करते हुए यू कैन, बट इसके साथ साथ हाउ यू आर हेल्दी, व्हाट वुड बी योर एक्टिविटीज इन हेल्थ, ठीक है, व्हाट वुड बी योर एक्टिविटीज एज ए वॉलंटियर with the society, with the social norms, या in the corporate world, because invest is nothing means कि आप सिर्फ पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर एक वर्कशॉप करने गए उसके लिए आपने वर्कशॉप पे किया तो सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली योर टाइम एज वेल, ठीक है, योर थिंकिंग, योर स्टाइल, योर if you are grabbing your personality, so what you want to wear, uske accordingly you will be purchasing, so that is also investing. So actually personality, actually knowledge, actually grooming, health, जिम, राइट, या कोई स्पोर्ट्स, ये सब चीजें आपकी ओवर द पीरियड आपके आपके पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड हैं और ये लिंक भी कर रही है। अब इसमें, हाँ, इसमें एक और चीज भी आ जाती है, लिंकिंग, नेटवर्किंग जिसको कहते हैं। लेट्स यू हैव कप ऑफ कॉफी विद मी, ठीक है, एंड यू आर स्पेंडिंग कप कॉस्ट ऑफ कप ऑफ कॉफी, so that means you are investing, actually you are not investing, you are actually paying that, और उसके अगेंस्ट जो आप नॉलेज या वो शेयरिंग अप्रोच या उस नेटवर्क में आप डिस्कशंस के दौरान कैप्चर कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली यू आर ग्रैबिंग। सो आई होप कि व्हाट इज ओल्ड थॉट एंड हाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यू थॉट्स, और किस तरह से हमें चलना है। मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ क्योंकि मैं काफी डिटेल में चला गया हूँ। तो बेसिकली इसको मैं अगली स्लाइड्स पे आपके साथ समराइज करूंगा जहाँ पे मैं कैरियर मैपिंग को कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अच्छा, इसके बाद एक मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने की कोशिश ये की थी कि हमारे यहाँ जो इस टाइम फोकस्ड है ना, हमारी कैरियर के अंदर ना दो डायरेक्शंस, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कराती है, एक मल्टीपल, और इसको हम ये कहते हैं लीनियर और मैट्रिक्स भी कहते हैं। व्हाट इज एक्चुअली दिस? कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक बंदा बैंक से फ्री हुआ, 25 साल उसने काम किया या 35 साल, या वो शुरू से स्टार्ट हुआ और रिटायर भी वहीं पे हुआ, और एवरीवन इंस्पायर्ड कि यार देखें बड़ा डेडिकेटेड, लॉयल और वो अप्रोच थी। दैट इज एक्चुअली अ लीनियर अप्रोच।
मैट्रिक्स अप्रोच आपकी क्रिएशन है, बिकॉज नाउ you have to be productive, you have to be innovative. So innovations, productivity, think out of the box का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही लाइन पे चलते रहोगे तो आपको जैसा सीन मिलेगा आप वैसे ही बताओगे, लेकिन अब जब आप डिफरेंट सीन देखोगे तो आप उससे मल्टी सीन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट मल्टी ऑप्शंस, बट वन ऑप्शन इज ओनली वन ऑप्शन। जैसे हम कहते हैं ना कि एक माइंड जो सोच रहा है वो अगर दूसरे से डिस्कस करता है तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है। 2 माइंड, 3 माइंड्स, 4 माइंड्स हैव अ डिफरेंट अप्रोच, और उससे जो चीज डेवलप होती है या हमें एज ए रिजल्ट निकल के आती है, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू स्ट्रेट डायरेक्शंस, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज के लीनियर या मैट्रिक्स में कोई फॉल्ट नहीं है, अभी भी लीनियर मेथड चलते हैं, मैट्रिक्स भी चल रहे हैं। डिपेंड ऑन कि आपकी कंपनी का या जिस कंपनी को आप ज्वाइन करते हो उस कंपनी का कल्चर क्या है। लीनियर से सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन सप्लाई चेन एज ए एग्जीक्यूटिव सप्लाई चेन। मैंने फिर सप्लाई चेन में काम किया, फिर प्लानिंग में काम किया, प्रोक्योरमेंट में काम किया, लॉजिस्टिक में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने। अब ये मेरा जो अप्रोच है ये मैट्रिक्स हो गई। अब मैं सप्लाई चेन मैनेजर या सप्लाई चेन डायरेक्टर या सीनियर सप्लाई चेन मैनेजर बैठूंगा तो मुझे सारे ब्लॉक्स का पता होगा, ठीक है, बट और उस वजह से मेरी अप्रोच डिफरेंट होगी, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर लूँ क्रॉस फंक्शनली, लाइक मैं ऑपरेशंस में चला जाता हूँ, प्रोडक्शन में चला जाता हूँ, R&D कर लेता हूँ, तो मेरा फ्लेवर एज ए कंपनी CEO डिफरेंट मोडालिटी में चला जाएगा। इट्स अप टू यू। अब इसी चीज को अगर मैं लीनियर में लूँ तो लीनियर में भी कोई मजायका नहीं। मैंने काम शुरू किया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर मैं सेल ऑफिसर बना, फिर मैं टेरिटरी ऑफिसर बन गया, अब मैं सेल्स में जाता जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं GM सेल्स बना, अब मैं स्टक हूँ। GM सेल्स के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। सो मे बी यहाँ पे मैं एक थ्रेट में आ जाऊंगा कैरियर की, ठीक है, या मैं अपना मतलब कैरियर के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूँ तो आई एम स्टक, ठीक है। बट अगर मैं मैट्रिक्स में हूँ तो मेरे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी उस टाइम भी ऐसे ही ओपन होंगी जैसे बॉटम लाइन पर थी। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, लीनियर वर्सेस मैट्रिक्स, राइट। सो अच्छा, कैरियर हर्डल्स क्या होती हैं? मैं जैसे अभी आपको बता रहा था, फिक्स माइंडसेट, मैंने फाइनेंस किया, मैं फाइनेंस भी काम कर सकता हूँ, मैं तो सेल में नहीं जा सकता, ठीक है। फॉरगेट टू रीलुक, रिविजिट हम करते नहीं है, इग्नोर हम बहुत करते हैं, हमारी डिक्शनरी में नो बहुत होता है, ठीक है। मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की। अब मैंने कंसल्टेंसी कैसे स्टार्ट की? आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, आई एम नॉट कहना चाहिए कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं विदाउट पे काम करूंगा, बट आई एंगेज विद सम कंसल्टेंसी फर्म एज ए फ्रीलांस, और फ्रीलांस विदाउट एनी कॉस्ट, जस्ट हैव टू कनेक्ट, क्रिएट अ कनेक्ट विद देम। अब उस कंसल्टेंट के साथ बैठ के व्हेन आई वाज डूइंग दैट असाइनमेंट with the yes mindset, और उसके अंदर मैंने लर्निंग करनी थी। आई नो कि आई एम इन्वेस्टिंग द टाइम। अब उस टाइम को इन्वेस्ट करके उस पर लर्निंग करके जो मैंने फ्रेम क्रिएट किया, बिकॉज मेरा जो एम था वो डिफरेंट था। आई हैव टू स्टार्ट माई कंसल्टेंसी, सो बिफोर दैट इफ आई विल डू अ कैरियर कंसल्टेंसी के मैं एज ए कैरियर ज्वाइन करूँ कंसल्टेंसी फॉर्म और काम करूँ, मैंने कहा 2-3 असाइनमेंट्स एज ए फ्रीलांस करो, फ्री कॉल करो, लर्निंग करो और एक्सपीरियंस करो और नेटवर्क में आओ। नेटवर्क में आने के बाद जब आपको नॉलेज आया, आपका नेटवर्क, आपका ब्रांड, आपको लोगों ने जानना शुरू किया, आप उस नेटवर्क में क्रिएट हुए, आपके साथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना शुरू हो गई। तो डू योर सेल्फ वॉलंटियर। नेवर एवर थॉट कि यार आप इस स्टेज पे आप जॉब मतलब एजुकेशन लेने के बाद या थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद इमीडिएटली एक जंप लोगे और आगे चले जाओगे। नेवर एवर थॉट दैट। You have to face a hard time. I'm telling you a true bitter true something कि आपने शुरू में बड़े अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं ले जाना, फ्लेक्सिबल रहना है और ऑलवेज कैन डू एटीट्यूड कैप्चर करना है, जिससे क्या होगा, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपको समझेंगे कि यार ही इज वेरी कमिटेड पर्सन, शी इज वेरी कमिटेड पर्सन, शी इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी एनालिटिकल पर्सन। चाहे आप फ्री कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको इमीडिएटली 2 दिन में 2 अप्रोच में वो
सॉरी मतलब विद इन ए शॉर्ट स्पैन वो आपको एक एक आउटलुक दे देगा। तो ये एक्चुअली बताने का जस्ट एक पर्पस ये है कि ये सब कैरियर हर्डल्स हैं जो आपकी कैरियर प्लानिंग और कैरियर अप्रोच के अंदर आ रही होती है। आपको नहीं पता चलता कि मैं वाकई नो कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं फिक्स माइंड सेट हूँ, बिकॉज हम लोग उसको प्रोग्राम कर नहीं सके होते हैं जिसकी तरफ मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा, एनी हाउ, ये एक वीडियो है, तो थोड़ा सा पॉज अप कर दूंगा इस वीडियो को, या आपने मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत वायरल है ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर डिफरेंट इंटरव्यूज हुए। मैं जस्ट इसमें फर्स्ट में डिफरेंट लोग आए, उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन उसके ऊपर दिए। बट द पर्पस क्या था इस वीडियो के अंदर जो मैंने यहाँ पे इनकैप की है कि उन सब का माइंडसेट, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत कंफ्यूज था। जो एंटर होते ही बता रहा था कि ही इज नॉट द राइट पर्सन, शी इज नॉट द राइट पर्सन जिसके लिए एम्प्लॉय इज लुकिंग फॉर दिस। बट लास्ट पर्सन जो कि बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है, वो क्यों आता है और क्यों वो जीत जाता है? क्योंकि उसकी प्रेपरेशन स्ट्रांग होती है। ही नोज के मैं कर क्या रहा हूँ और मैंने क्यों किया है। अगर मैंने कोई फेलियर किया है तो उसकी रीजन क्या थी, मैंने उसमें से लर्न क्या किया। सो एवरी स्टेप ही हैज टेकन, ही नोज इट बेटर। तो इस पॉइंट से उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसको उसके लिए ना तो इंटरव्यू तैयार करना पड़ा, ना उसको कोई सीवी राइट करनी पड़ी, ना उसको वो खुद से बता रहा था जो उसके अंदर है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, एथिक्स, कंफर्टेबल जोन, या आप कह लो कि उसकी अप्रोच वुड बी डिफरेंट हो गई। सो मैं इस चीज को आपको यहाँ पे यही चीज एक्चुअली अब मैं उस तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले कैरियर में और इसके बारे में बताया और इस चीज का कैप्चर किया कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। अब आप उसका करते मतलब उस चीज को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे मैप अप करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, दैट इज एक्चुअली अ गेम। सो कैरियर इज मी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हमेशा अपने आप को ये जहन में रखना कि कोई भी आपको प्रॉपरली ना तो गाइड करेगा, ना ही वो आपकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि क्या आप क्या करना चाहते हो। ये आपकी अप्रोच है कि आपने क्या करना है। अब आपने जो भी कुछ करना है या जो कुछ कर लिया है, उसको मैप करने के लिए आज अपने आप को एक फ्रेम में लेके आओ। आई एम सेइंग दैट दिस इज द फ्रेम ऑफ असेस योरसेल्फ, dig deeper, matchbox, roadmap. These are the four pillars, sorry, which I am, creating a frame कि आप सबसे पहले आप आज जो भी स्टडी कर रहे हो, जिस भी डिसिप्लिन में हो या जहां भी जॉब कर रहे हो, जस्ट टेक अ ब्रीथ सॉर्ट ऑफ, और एक रिलैक्स माइंड में आप पहले अपने आप को असेस करो। असेस क्या करना है आपने, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नॉर्मली दो ही पर्सनैलिटीज होती है, या इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, आप बहुत जॉली हो, आप बहुत ओपन हो, सोशल हो, या आप यू वांट टू बी रिजर्व या साइलेंट, या इन अ साइलो समथिंग, दैट्स अप टू यू, इट्स पर्सनैलिटी नंबर वन। फिर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इसके ऊपर नॉर्मली शायद मेरे पास भी आंसर नहीं होगा। आई एम स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ एज ए स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट? बट यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ कि आज बैठकर आज की डेट में what sort of strengths you have। इसकी बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप लिख लो जो भी आपके जहन में फर्स्ट माइंड में फर्स्ट टाइम जो भी वर्ड आता है लिख लो, मेंशन, नॉट डिग डाउन। बस सिर्फ लिखते जाओ कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो एज ए स्ट्रेंथ्स आ जाए या वीकनेसेस, वो बाद में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होंगे जब आप एक स्ट्रेंथ लिखते हो कि ओके यार मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, लेट्स एग्जाम्पल इट। अब एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी है तो आपने एनालिसिस किए कौन से, कौन सी ऐसी असाइनमेंट है या कौन सा ऐसा टास्क है या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप जस्टिफाई कर सको खुद के साथ, नॉट अदर्स। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप से फाइट कर रहे होंगे। जब आप अपने आप से फाइट करते हुए आप खुद को प्रूव करोगे कि यार ये एनालिटिकल स्किल वाकई मेरी स्ट्रेंथ है बिकॉज मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है,
या मेरे अंदर वीकनेस है बिकॉज मुझे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. आई कांट बी यू नो इन पेशेंस बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स. तो वो फैक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे. इस तरह ही आपका इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट आपको आइडेंटिफाई करेगा और जस्टिफाई करेगा. ये वो सारी डिक्शनरी है जो इटसेल्फ आप अपने पास अभी रख रहे हो और उसके थ्रू आप अपने आप को असेस कर सकते हो. एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड बेस. ग्रेजुअली इट विल बी अपडेटेड, बट आपका एक फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा. अब इन्हीं चीजों को आप डीप डाइपर मतलब उसका जो डीप डीपर जाओगे वो कैसे होगा. अब आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है एनालिटिकल स्किल्स, मेरी स्ट्रेंथ है सोशल पीपल ओरिएंटेड. ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी भी एक्स्ट्रावर्ट है. अब आपके लिए जॉब मैच बहुत आसान होगा. हाउ? अब डिग डीपर की डेफिनेशन में आ रहा हूँ. आप ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे. ओके यार, मार्केटिंग. नंबर 2 सेल्स. नंबर 3 सप्लाई चेन. लेट्स 3 ऑप्शन आई हैव इन माय पॉकेट. आप सप्लाई चेन में कौन कौन सी जॉब्स हैं, सेल्स में कौन सी जॉब्स हैं, मार्केटिंग में कौन सी जॉब है. नौ सेकंड पे जॉब्स आपके पास आ गए. अब जॉब्स जो हैं उनको आप, वो मैं कैरियर मैपिंग में वैसे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर देता हूँ. उन जॉब्स को आप जेडीज और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और उनकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उनके थ्रू आप अपने आप को असेस कर लोगे कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मजीद ग्रैब करनी है. अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी. आप ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासिफाई कर लोगे क्लास ए बी सी में कि अच्छा ये एमएनसीज हैं, बी में लार्ज ग्रुप है, सी में स्मॉल ग्रुप्स हैं. ओके, और इनमें भी आपने सेक्टर देखने हैं. मैं कहता हूँ कि मैं एफएमसीजी में काम करूंगा, फार्मा में काम करूंगा. लेट्स स्टार्ट विद फार्मा एंड एफएमसीजी, राइट. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल सर्च हो गया. अब इनकी रिसर्च क्या है, अब आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करोगे. जॉब तो आती रहेंगी, अप्लाई तो आप करते रहोगे, लेकिन रिसर्च एंड नेटवर्किंग क्या कर रहे होगे कि आप लेट्स से एमएनसी में एफएमसीजी में हो, आपने नेस्ले का एक केस स्टडी पकड़ी और उसके ऊपर रेड डाउन कर लिया, 2 पकड़ी, आपने उसको गो थ्रू कर लिया. अब आपने नेस्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं पेप्सी की बात करता हूँ, आपने पेप्सी की कोई असाइनमेंट कर लिया, लिंक्डइन पे आपने सर्च किया इमरान मुनीर, आप अटैच हो गए कि जी आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, और इस तरह से आप यू शुड स्टार्ट नेटवर्किंग. आपने अपने उस रिसर्च बेस पे अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने क्वेश्चंस किए, उसके ऊपर डायलॉग किया. अब वहां पे आपने नेटवर्क भी क्रिएट किया और आपने आस्ते आस्ते अपना परसेप्शन भी क्रिएट करना शुरू किया. मुझे पता चला कि यार ये बंदा इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है. हो सकता है मैंने वहां पे आपको कहा आप इस पे भी काम करो. फिर हमारा एक लिंक क्रिएट हुआ, अपॉर्चुनिटी आई, तो आपको इमीडिएटली मेरे माइंड ने पिक कर लिया कि यार फलां बंदा ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें कर रहा था, पिक दैट पर्सन. क्यों? नेटवर्क हुआ हुआ है. सो मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सेइंग असेस योरसेल्फ एंड डिग डीपर. सो आजकल ये नहीं कि आपने सीवी ड्रॉप बॉक्स में डाली और एम्प्लॉयर ने आपको कैच किया, एचआर ने कहा यार गुड सीवी एंड यू हैव टू बी कवर अप ऑन इंटरव्यू. यस, देयर इज अ चांसेस, बट जो नेटवर्क और रिसर्च और जो जिसको मैं होमवर्क भी कहूँ ना, जो प्रॉपर होमवर्क करके आया हुआ है, वो इमीडिएटली कैच द ड्राइव. ठीक है. इसी तरह मैच बॉक्स है. मैं इसको बड़ा जेनेरिकली कवर कर रहा हूँ. इस पे अगर मैं बात करूँ तो एक एक घंटे का अलग से स्लाइड अप है कि हाउ टू यू असेस योरसेल्फ, हाउ यू डिग डीप, और व्हाट वुड बी द मैच बॉक्स, राइट, रोड मैप. सो मैचिंग इज एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड स्टेज, जिसको मैंने आपको ग्रैब किया कि आपने पर्सनैलिटी देखी, स्ट्रेंथ देखी, वीकनेसेस देखी, उसके हिसाब से आपने जॉब और उसको ग्रैब अप कर लिया कि ये जॉब सूट कर सकती है, ये रिसर्च हो सकती है, इस तरह से नेटवर्क करूंगा. और अपने आपने वीकनेसेस और गैप्स को भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, बाय डूइंग नेटवर्किंग, बाय डिस्कसिंग विद सम मेंटोर, कोच. ठीक है, हम लोग मेंटोर और कोच भी नहीं रखते. ठीक है, हम लोग कनेक्ट ही नहीं होते हैं, हम इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते हैं. बट इट्स अ वेरी हार्ड नोट कि हमें ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं. ठीक है, और इसी तरह से हम कुछ स्किल्स कोर्सेज कर लेते हैं, कुछ बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है एज ए गूगल, आप उसके थ्रू भी कैप्चर कर लेते हो. सो बहरहाल असेस, डिग डीपर, मैच बॉक्स, एक्चुअली यू क्रिएट अ रोड मैप. ये होगी आपकी एक स्मॉल स्ट्रेटेजी एज ए स्मार्ट, जिसके अंदर आप अपने क्या वर्कआउट कर रहे होगे जॉब सर्च और जॉब रिसर्च के मुताबिक. आप जॉब रिसर्च आप कर रहे होगे एफएमसीजी और फार्मा में, बिकॉज यू हैव टारगेट दैट. सो आप थोड़े से स्पेसिफाई होते जाओगे. उसके अंदर आप फिर डिपार्टमेंट की बात कर रहे होगे, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से चल रहे होगे.
सो इस तरह से आप अपना एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बना लोगे, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश भी करोगे, रीडिफाइन भी करोगे, रीट्यून भी करोगे, बट आपका एटलीस्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो पैटर्न आपको, अब यहाँ पे मैंने आपको बात की थी ना, इंटरव्यू स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन कोई तैयार करने की जरूरत है। जब आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके होगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज आप पहले से होमवर्क करके आए होंगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट। अब मैं कैरियर मैपिंग की बात करूं तो वही मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन में बात की थी, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड competencies, पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब आपने सोच लिया कि मैंने सप्लाई चेन में काम करना और FMCG फार्मा में काम करना है, so let's dig down and compare the job description and specification they are offering. Just search out and find out a lot of things you can on the net. और उसकी बेस पे आप competency platform create करोगे। ये सब आप फ्रेमवर्क कर रहे हो, एक्चुअली इसको आप कैरियर, अपने कैरियर को मैप कर रहे हो। तो जो चीज आप एक 6 महीने, 3 महीने या साल के अंदर अपना कैरियर मैप कर लेते हो, तो उसके बाद आपको डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हाउ एंड वेयर एंड व्हेन यू वांट टू बाय द टूल्स, तो वो सब चीजें पता होंगी, तो आप एक्सलरेट करोगे और पैशनेटली आप आगे जाते जाओगे। आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी एक्सट्रीम होगा। आप जब भी ये कैरियर मैपिंग करो तो इसको 3 स्टेजेस में करो, 3 years, 5 years एंड 10 years। 3 years के अंदर अंदर का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका फिक्स्ड होगा, 5 years वाला थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होगा, एंड 10 years भी बहुत ज्यादा, बिकॉज हम लोग इतना खैर ज्यादा प्लान नहीं कर सकते, हमें कल का नहीं पता। तो लेकिन 3 years डाउन द रोड हमें एक्सपेक्ट पता है इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, वो सारा कुछ कैप्चर हो सकता है। सो हाउ टू क्रिएट अ मैप। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, वेयर आर यू नाउ, स्टार्ट एंड वेयर यू वांट टू गो। अब आपको पिछली 2 स्लाइड्स में जो डिफाइन होगा वो आपको ये बताएगा कि अभी कहाँ हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, वीकनेस, पर्सनालिटी, कैरियर, व्हाटएवर, और जाना कहाँ पे आपको। उस लिहाज से आप अपने गैजेट्स क्लिक करोगे। गैजेट्स के आपके गैजेट्स में आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल है, स्किल्स है, फेलियर्स है, सक्सेस है। अब आपने एक्सपीरियंस का ऑन करना है तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हो। आपने एक्सपीरियंस करना है, आप तो जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप कोई वॉलंटियर यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी करते हुए भी आप वॉलंटियर कर सकते हो, ठीक है। सो वट एवर यू हैव, आप वो एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी तरह स्किल्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैंने MBA के अंदर वो जो केस स्टडी पढ़ी वो किस तरह से पढ़ी, अब मैं वहाँ पे उसी केस स्टडी को जिस मेथड से अब मैं सोच रहा हूँ पढ़ता, तो मेरी स्किल्स वहीं पे डेवलप हो रही थी, नॉलेज भी डेवलप हो रहा था और एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा होता, ठीक है। और उस इन तीनों के पीछे फेलियर भी आ रहा होता है, मिस्टेक्स जिसको कह रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल somehow जहाँ लग रहे हैं जहाँ नहीं है, वो मतलब फाइनेंशियल इज अ पार्ट, बट दीज आर द गैजेट्स which face throughout where and where you want to go. So create short and long term goals, जिसकी मैंने बात की 3, 5, 10 years, right? इसको मैं वैसे एक जस्ट एग्जांपल दी थी, बट मैं अब इसको आगे मूव आउट कर देता हूँ टाइम की वजह से। सो जब आपके पास स्किल्स और एबिलिटीज होंगी तो यू कैन गेट एम्प्लॉयड, बिकॉज यू शुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, या फिट फॉर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब होता क्या है, हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर सिंपली अप्लाई करते हैं, we never ever do a homework on that assignment, on that position, because हमें हर ये होता है कि हमें बस जॉब मिले, जॉब मिल जाए, but actually we are wasting our time, right? So इसी तरह नॉलेज, लर्निंग, गैजेट्स, ये आपके गैजेट स्किल्स हैं, आपको एम्प्लॉय भी करेंगे, सक्सेसफुल कैरियर भी है, मीनिंगफुल अचीवमेंट भी है। तो आपने इन सारे पिलर्स को नॉलेज, लर्निंग, गैजेट्स में कवर अप करना है, फ्रेम में अपने सेट करना है, फ्रेम जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वैसे। सो आउटकम्स क्या है, आउटकम्स ये है कि अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो कि हु यू आर, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फ्रेम क्रिएट करके अपने ब्रेन को प्रोग्राम करो और अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सरसाइज करो, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो, एंड डेफिनेटली बिलीव, चैलेंज। चैलेंज तो आप कर रहे होगे स्टार्ट से ही, जब सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप हमेशा ये कहोगे नहीं मैं आई एम द परफेक्ट, यहीं पे आपने चैलेंज शुरू कर देना अपने आप को। तो चैलेंज किया तो आपको वीकनेसेस नजर आएंगी, स्ट्रेंथ्स नजर आएंगी, और उसके बाद जब आप ब्रेन को प्रोग्राम करोगे फिर आप चैलेंज अपने आप को करोगे, क्योंकि चैलेंज का मतलब ये है कि जहां जहां चेंज आ रहा है एक्चुअली वो आपका चैलेंज है। अब ये आप किसी सोसाइटी के साथ नहीं कर रहे, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ नहीं कर रहे, आप अपने साथ कर रहे हो,
जब आप खुद को समझ जाओगे और खुद पे बिलीव आ जाएगा तो आपकी लिविंग जो है विद पर्पस डिफाइन हो जाएगी। और लिविंग ही एक्चुअली कैरियर मॉडिफिकेशन है। अब वो कैरियर आप एज ए एंटरप्रेन्योर ले लो, एज ए बिजनेसमैन ले लो, या एज ए जॉब ले लो, आपके पास पर्पस होगा कि व्हाई आई एम डूइंग जॉब एंड व्हाट I want to do and how much accelerate myself and what would be my next target up to 3 years, 5 years or 10 years. So business है तो business में भी ये हो जाएगा. So find out what you like doing best and get someone to pay you for doing it, right? So this is all about from my side. I will try my best कि मैं इसको पूरा इसमें cover कर सकता हूँ, but it's a very detailed topic, but it's open to you now for any question and answer something. जी, students, if you have any valid questions, you can ask, please. अच्छा, स्टूडेंट्स आप बेशक अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन या यू नीड सम गाइडलाइंस तो यू कैन राइट मी. आपके पास व्हाट्सएप का मेरा नंबर भी आ रहा है. यू कैन अप्रोच मी थ्रू व्हाट्सएप. अदरवाइज आई हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. जी, और students, let me share that Imran Sab is also a UMT graduate, so you can जी, get this बिल्कुल. inspiration too. कि बेसिकली जब हम लोग अभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद मोस्टली हमें इंटर्नशिप्स के लिए जाना पड़ता है या ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में. जैसे अब मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो मैंने एक दो काफ़ी जगह अप्लाई किया तो मोस्टली जगह मैं इंटरव्यू भी दे के आ रहा हूँ. तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे कॉल किया जा रहा है या वो मुझे कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर आइएगा, अभी आपका सेमेस्टर एंड नहीं हुआ. तो ये कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड वे कि हम लोग अभी इसमें रहते हुए अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हमें वो अभी से प्रिपेयर कर लें. देखो, इसके अंदर एक चीज होती है कि आपको अभी से, इसलिए आप बेखल है मॉर्निंग टाइम में अपनी स्टडीज कर रहे होगे, तो इफ समवन हायर यू तो आप शायद अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, राइट? सो Yeah. एक स्केल तक तो आपने ये कांस्टेंट हो जाना है कि मींस आप अपनी एटलीस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मास्टर शुड बी इन इवनिंग क्लासेस समथिंग. सो आप ग्रेजुएट जब हो जाते हो उसके बाद आपका जो फर्स्ट फेज है एज ए स्टूडेंट या एज ए बिगनर, वो नॉर्मली इंटर्नशिप से या एमटीओ प्रोग्राम से स्टार्ट होता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन, अगर यहाँ से आप कनेक्ट होना चाहो, आप जॉब पे भी जा सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप एमटीओज पे हो. यहाँ पे आपका जो स्किल लेवल है ना, वो ये नहीं है कि आप उस डोमेन के मास्टर होगे. आपका स्किल लेवल ये होगा कि आपका जो भी स्पेसिफिक डोमेन है, हसन आपकी, आई मीन अगर सप्लाई चेन है तो आप सप्लाई चेन में हो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो मैं आपको ना एमटीओ रिकमेंड करता हूं, ना आपको फ्रीलांस उसमें, सॉरी, इंटर्नशिप में करता हूं. आप तो खुद इट सेल्फ प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांस, बिकॉज सॉफ्टवेयर एक ऐसी अप्रोच है जो कि दूसरों के माइंड में जो भी सिस्टम या प्रोसेसेस है उनको एक एज ए प्रोडक्ट अपीयरेंस में फ्रंट एंड पे लेकर आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. अगर मैं एज ए लेमैन इसकी डेफिनेशन करूं तो आप तो शायद अभी भी बैठे हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हो, बट द गैप इज एक्चुअली क्या होगा, जस्ट आई मीन परसीविंग दैट, कि गैप ये होगा कि आपको ये तो पता होगा मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, बट किस चीज का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, मार्केट में नीड क्या है, मार्केट की डायनामिक्स पे चल रही है, वो शायद आपके लिए एक क्वेश्चन होगा. ठीक है. उसके लिए यू शुड पहले, सबसे पहले फोकस ये करो कि आप सॉफ्टवेयर तो बना सकते हो, बट सॉफ्टवेयर में आपका कोई इंटरेस्ट है, लाइक यू शुड बी good in finance side, you should be good in marketing side, या you should be good in HR या supply chain. उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप का लिंक नेटवर्क क्रिएट करना शुरू करो. आप कोई वॉलंटियर एक्सरसाइज कर लो जहां से आप एक्सपीरियंस ग्रैब कर रहे होगे. फॉर एग्जांपल समवन इज सेड कि यार मैंने HR का सॉफ्टवेयर बनाना है. अब वो HR का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप उसके साथ वॉलंटियर करते हो. यस, यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम, बट आप एक्चुअली सीखोगे वहां पे कि वो HR में क्या चीज करवाना चाह रहा है, उसके प्रोसेसेस क्या है, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स उसको लेनी है, क्या प्रोसेस होना है. अब उस HR वाले को ये नहीं पता होगा कि इनपुट्स आएंगी कैसे, आउटपुट कैसे आएंगी और प्रोसेस कैसे होगा, वो आपको पता होगा. बट
कंबाइनली आप वहाँ पे एक्सपीरियंस ग्रैब कर जाओगे। और शायद फ्रीलांस तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को बाय डूइंग स्मॉल एक्टिविटीज। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज जहाँ से आप जो है ना स्मॉल एक्टिविटीज स्टार्ट करके, शायद वो हिट एंड ट्रायल होंगी, आपको कुछ अर्निंग नहीं हो रही होगी, बट आपका प्लेटफॉर्म जरूर बिल्डअप हो रहा होगा, क्योंकि उसके बाद आप जब मेंटली ओपन हो जाओगे ना, आपका प्रोग्राम माइंड जो है ना वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसकी जो उसकी जो एक रनिंग है वो स्टार्ट होगी, तो आप खुद ब खुद कनेक्ट करना शुरू कर दोगे चीजों को उसमें। या श्योर, आई विल कांटेक्ट यू फ्रॉम लिग्निन। हाँ, जिस पे भी आप कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू जी, एनीथिंग Imran एल्स? sir, we have few questions on chat. जी Can you please answer those questions? जी, सॉरी, मैं एक मिनट। हाउ टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, मोहम्मद सलमान इज आस्किंग के हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आज मैं यूज सलमान, आई डोंट नो कि आप कौन से आई मीन बैच पे हैं इस टाइम, बट अगर मैं उसकी बात करूं कॉन्फिडेंस लेवल की, तो आप शायद स्टूडेंट लेवल से ही ये चीज स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब आप क्लास में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ यू शेकी, सो डिपेंड ये कर रहा है कि स्पेसिफिकली आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो या आप खाली क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आप इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, सो दैट विल बी अप्रोच। कॉन्फिडेंस इज देयर, बट आपको यू नीड टू ओपन इट के व्हाट एग्जैक्टली अप्रोच यू हैव टू कैप्चर। तो थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर में है आपका क्वेश्चन, बट मैं यूं कहूंगा कि आप जहां पे भी एज ए कॉन्फिडेंस, आपको जहां पे फील होता है कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ बट मुझे करना चाहिए था, तो चैलेंज योर सेल्फ और ड्राइव योर सेल्फ कि मुझे ये करना है, चाहे उसमें आपकी इंसल्ट हो रही है, चाहे आपको मजाक उड़ाया जा रहा है, कुछ कुछ भी है, हो सकता है आपको अप्रिशिएट हो, बट ब्रेक दैट बैरियर, और 1 2 3 4 एफर्ट्स में आप ये शायद अपने आप में खुद ब खुद एक बूस्ट योरसेल्फ एंड एक कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल जोन से बाहर आ चुके। अच्छा, हाउ आर someone is asking me, Bilal, when we given an entry test for organization, sometimes we don't get shortlisted, we don't know how what did wrong in the test and suggestion that we can prepare for some test. यह देखो इसमें जो शॉर्ट लिस्ट में होता है कि आप अब ये भी एक क्वेश्चन होता है कि एंट्री टेस्ट में आप क्यों फेल हो गए हो, क्यों पास हो गए हो। इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि शायद आपको एचआर या वो कंपनी आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकती कि क्या हुआ, राइट। बट डिपेंड ये करता है कि जब आप कोई भी टेस्ट दे के आ रहे हो, या आप कोई भी पेपर परफॉर्म कर रहे हो, या आपने कोई भी असाइनमेंट की है, सो जब आप उसको खुद से एवेल्युएट करते हो, तो आपको लिटरली 50-60% पता चल जाता है कि वेयर इज द एरर। आप समटाइम पेपर दे के आते हो, आपको पता होता है इस क्वेश्चन में मैं जो कुछ लिख के आया हूँ उसमें से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पर एक्चुअली होता क्या है, वहां पे हम लोग ना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने सही किया है। आपने ट्रू मीन्स में अपने आप को चैलेंज करना है, तो आप वहीं पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरे साथ टेस्ट में क्या चीज रॉन्ग हुई है, और उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज आपका क्वेश्चन बहुत ब्रॉडर पिक्चर में है, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से कैप्चर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आई होप के आई हैव आंसर्ड दैट। और उसके बाद क्वेश्चन है जी, हाउ यू आर मैनेजिंग सप्लाई चेन इन पेप्सी-कोला एज डिमांड इज टू मच एंड यू हैव वन प्लांट ऑफ रियाज बॉर्डर इन लाहौर। या फहद, बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है, आई बिलोंग्स टू स्नैक्स डिवीजन ऑफ पेप्सिको इंटरनेशनल। सो बट आई विल ट्राई टू आंसर यू के हमारे कोई 12 प्लांट्स हैं एज ए बॉटलर। बॉटलर इज अ फ्रेंचाइज ऑपरेशन, फ्रेंचाइज मॉडल। अब वो 12 प्लांट्स हमारे नेशन वाइड सप्लाईज को मैनेजर करते हैं। तो जो रियाज बॉटलर है, जो इस टाइम इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू Lotte International. So they actually, covering Punjab, जिसमें Central 1 and Central 2 की अगर बात करूं, तो ये उसकी डोमेन को कवर अप कर रहे हैं। और इसी तरह अगर मुल्तान है, तो मुल्तान बेवरेजेस जो है, इस्लामाबाद है तो हैदरी बेवरेजेस है। तो
ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से कैप्चर हुई है, बट yes, it is not centralized, so they are individually managing their supply chain, so that's why sometimes they have conflicts and shortages in terms of, maybe that's why you are asking. So this is the one reason which they have. Or is there any media cell of Pepsi Cola, as I am student of media and of MPhil media? हम लोग बेसिकली पेप्सी के अंदर हमारा मीडिया सेल itself नहीं है. We have an outsourced activity, but yes, marketing is doing media and communication by through that interaction with the third parties. So we have not directly, a full department where we can work out, but in some sort of research and in some sort of, media working or analysis, we have engaged our third parties. Well, thank you so much, Imran Saab, and thank you all once again. I hope you have found this session very helpful. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Take care.